افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ افغانستان سے دہشت گردی کا معاملہ اٹھائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کے پی پولیس دہشت گردوں سے لڑ رہی ہے، اسی لیے نشانہ بنی۔ عمران خان نے امن کا بیڑا غرق کر دیا۔ 24 نیوز کے پروگرام گونج میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید کیا کہنا تھا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور ہم اس کے ہمسائے میں ہیں، اور اس کے جو ریپرکشنز ہیں، اس کی جو یعنی فال آؤٹ ہے وہ ہمارے اوپر آ رہا ہے۔ اور یہ جو آج کی صورتحال ہے، یا جو کوئی پچھلے 2-3 مہینے سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، تو اس میں اگر ہمارے ہمسائے میں وہ صورتحال نہ ہو جو کہ اس وقت ہے، اور جس کو میں شاید پوری سچائی اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس وقت اس کے اوپر بات کرنا بھی شاید قومی مفاد میں نہ ہو، کے پی کے کی پولیس لڑ رہی ہے نا دہشت گردوں کے خلاف، لڑ رہی ہے تو وہ نشانہ بنی ہے، اور آج بھی پولیس ہی ہدف تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے میں کوئی اتنا زیادہ فرق ہے، اور ٹی ٹی اے کی وجہ سے، تحریک طالبان افغانستان کی وجہ سے ٹی ٹی پی کو وہاں پہ ایک ایسا جو سیف ہیون میسر ہے کہ وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہے ان میں تیزی لاتے ہیں، اور ان میں ان کے لوگ جو ہے وہ ان کا نقصان ہوتا ہے، ان کے لوگ ہلاک ہوتے ہیں، تو وہ خاموشی سے دوسری طرف چلے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے پھر تیاری کرتے ہیں، پھر تیاری کر کے یہاں پہ آ کے جو ہے وہ لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ یہ جو بندہ ہے، یہ جو فتنہ ہے، اس نے تباہ کر دیا ہے اس ملک کو، معاشی طور پہ بھی اس نے تباہ کر دیا ہے، اخلاقی طور پہ اس نے تباہ کر دیا ہے، کوئی کریکٹر نہیں رہنے دیا ہے اس نے، قوم کا سیاسی رواداری کا فقدان کر دیا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے جو ہے وہ سیاسی مخالف نہیں، ہم ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں۔ دیکھیں، یہ آج کی صورتحال جو آج کا واقعہ ہوا ہے، اس کو تو دیکھنا ہوگا، کیونکہ یہ طالبان جو ہیں یا دہشت گرد جو ہیں، انہوں نے بعض سیاسی جماعتوں کو وہ بڑی بری طرح سے ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان کی قیادت کے متعلق بات کر رہے ہیں، اور باقاعدہ وہ دھمکیاں جو ہے وہ کھلے عام دے رہے ہیں، اور بعض کو وہ نہیں کر رہے، بعض کے متعلق ان کا بھی جو ہے وہ سافٹ کارنر ہے۔ تو ایسی صورتحال میں پھر فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہ کیسے ہوگا؟ پارٹی نے ان کو اپنی جو ہے وہ ضرورت سے، اپنی سبمیشن سے کنوے کر دیا ہے کہ الیکشن میں ان کی ضرورت ہے، الیکشن میں وہ آئیں، آ کے وہ عوام کے ساتھ بات کریں، اور عوام کو جس صورتحال سے گزرنا پڑ رہا ہے، جس صورتحال سے گزارا جا رہا ہے، اس کے متعلق وہ لوگوں کو اعتماد میں لیں، اور لوگ ان کے اوپر اعتماد کریں گے۔ تو یہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، میں آؤں گا، تو اس میں ڈیٹ کا اعلان تو وہ خود کریں گے، اور اگر الیکشن جو ہے وہ اناؤنس ہو جاتا ہے تو وہ بہت جلد آ جائیں گے۔ اگر تھوڑا الیکشن لیٹ ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے پھر ان کا پروگرام بھی تھوڑا 4 دن آگے ہو جائے۔ چودھری شجاعت قاف لیگ کے صدر رہیں گے یا نہیں، فیصلے کی گھڑی آن پہنچی۔ الیکشن کمیشن چودھری شجاعت کی درخواست پر محفوظ شدہ فیصلہ آج سنائے گا۔ فیصلہ الیکشن کمیشن نے گزشتہ سال اگست میں محفوظ کیا تھا۔ مزید جانیں گے عثمان خان سے، عثمان بتائے گا۔ جی بالکل، چودھری شجاعت قاف لیگ کے سربراہ رہیں گے یعنی فیصلہ جو ہے آج ہوگا۔ الیکشن کمیشن چودھری شجاعت حسین کی درخواست پر محفوظ شدہ فیصلہ آج سنائے گا۔ الیکشن کمیشن نے گزشتہ سال اگست میں فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ چودھری شجاعت نے پارٹی صدارت سے ہٹائے جانے کے خلاف الیکشن کمیشن میں درخواست دائر رکھی تھی۔ الیکشن کمیشن نے حکم امتناع پر چودھری شجاعت حسین کو بحال کیا تھا، اور فیصلہ جو ہے مختصر سماعتوں کے بعد محفوظ کیا تھا، جو آج سنایا جائے گا، جس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ چودھری شجاعت حسین قاف لیگ کے صدر رہیں گے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عثمان آپ کا۔ اسلام آباد ایف 8 کچہری میں جوڈیشل مجسٹریٹ نے پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کے مزید جسمانی ریمانڈ دینے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ ڈی ایس پی لیگل نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ فواد چودھری کا لیپ ٹاپ برآمد کرنا ہے، لہٰذا مزید جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ فواد چودھری کے وکیل بابر اعوان نے پولیس کی استدعا کی مخالفت کی۔ عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری کی اہلیہ نے کہا کہ بچوں کو بھی ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ سابقہ پی ٹی آئی ایم پی اے عظمیٰ کاردار نون لیگ میں شامل ہو گئی ہیں۔ عظمیٰ کاردار نے نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز سے ملاقات کی۔ مریم نواز نے عظمیٰ کاردار کو اپنی میڈیا ٹیم میں شامل کر لیا۔ مریم نواز نے عظمیٰ کاردار کو میڈیا پر نون لیگ کی ترجمانی کی ہدایت کی ہے۔
पंजाब में सेक्रेटरियों के तकर्रुर और तबादले। अहमद रजा सरवर को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब लगा दिया गया। फवाद हाशिम रबानी सेक्रेटरी MPDD, जबकि हमद SN वहीद को सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन तैनात कर दिया गया। शाहिद जमान को सेक्रेटरी स्पोर्ट्स और उस्मान अनवर को सेक्रेटरी आर्काइव लगा दिया गया है। इसी तरह कैप्टन जफर इकबाल सेक्रेटरी हाउसिंग, जबकि डॉक्टर इरशाद अहमद सेक्रेटरी बल्दियात तैनात कर दिए गए। नबील जावेद को सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लगा दिया गया। सेक्रेटरी स्कूल्स वकास अली महमूद, सेक्रेटरी औकाफ इब्रार अहमद और सेक्रेटरी एक्साइज असदुल्ला फैज को OST बना दिया गया। आगे बढ़ेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में तरक्याती कामों के लिए दिए ठेकों की तफसील तलब कर ली। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लिए 128 अरब रुपए खर्च किए। कौमी ख़जाने से मनपसंद अफराद को नवाजा गया। कोरोना के नए वेरिएंट के जोर पकड़ने का खतरा। पाकिस्तान आने वाले वेस्ट वाटर कोरोना वेरिएंट की तरसील का जरिया बन सकते हैं। एविएशन हुकाम को गैर मुल्की परवाज़ों की मुकम्मल स्क्रीनिंग करने की हिदायत कर दी गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने मरासला जारी कर दिया। NIH सैंपल कलेक्शन के लिए सामान फराहम करेगा। इसके अलावा सैनिटरी वर्कर्स को मुकम्मल दिफाई किट्स भी फराहम की जाएंगी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मगरब और अमरीका का दीनी मदारस के खात्मे का ख्वाब पूरा नहीं होने देंगे। अवाम जान लें जैसे अमाल होंगे वैसे ही हुक्मरान होंगे। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में वफाकुल मदारस अल अरबिया पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम हुफ़ाज़ कराम के मुकाबले क़रत की तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, कुरान से दूरी रखते हो फिर बुरी मईशत पर क्यों रोते हो। अल्लाह ताला की नाफरमानी की सूरत में मुआशी खराबी भी होगी, खौफ भी होगा। जो 75 साल से हम इस कुरान का हक अदा कर रहे हैं वो भी हमारे सामने, तो फिर नतीजा क्या होगा। वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, अपनी बुरी मईशत पर फिर रोते हो। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि लोग अलीगढ़ के निसाब की अब भी बात करते हैं। आज सबसे ज्यादा तनकीद मदारस पर होती है। कहते हैं बच्चों को जाया कर रहे हैं। यूनिवर्सिटियों से फारिगुल तहसील डिग्रियां लेकर रोजगार के लिए फिर रहे हैं। आज सबसे ज्यादा तनकीद मदारस पे होती है, बच्चों को जाया कर रहे हैं। इनको एहसास नहीं है मदारस के अंदर पढ़ने वाले नौजवानों की मईशत का। भाई तुम्हारे कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में जो लोग ग्रेजुएट बन रहे हैं, बड़े बड़े असनाद हासिल कर रहे हैं, लाखों की तादाद में डिग्रियां अपनी बगल में लिए कतार अंदर कतार खड़े हैं, तुम उनको रोजी नहीं मुहैया कर सकते, मईशत मुहैया नहीं कर सकते। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मगरिब और अमरीका दीनी मदरसों का खात्मा चाहते हैं, इनके ख्वाब को पूरा नहीं होने देंगे। मौलाना ने पेशावर खुदकुश हमले का निशाना बनने वालों के लिए इजहार अफसोस और हमदर्दी भी किया। कैमरामैन वाजिद मुगल के साथ उस्मान खान, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर एक बार फिर धुंध की लपेट में आ गए। शहर के नवाही इलाकों और मोटरवे के बाज़ मकामात पर शदीद धुंध के बायस हद निगाह सिफर हो गई। हिफाजती इक़दामात के तहत मोटरवे के कुछ हिस्सों को जुज़वी तौर पर बंद कर दिया गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे बाबू साबू इंटरचेंज पर मौजूद हमारे नुमाइंदे इसरार खान से। जी इसरार, आगाह कीजिए। जी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर एक बार फिर से धुंध की लपेट में आ गए। अगरचे दिन के औकात में शहर लाहौर में धुंध ना होने के बराबर थी। कहीं पर बूंदाबांदी हुई तो कहीं पर हल्की बारिश हुई, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। लेकिन रात 10 बजे धुंध का सिलसिला शुरू हुआ, जो रात गहरी होने के साथ साथ बढ़ता ही चला जा रहा है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि ना सिर्फ शहर लाहौर के नवाही इलाका जात में शदीद धुंध पाई जा रही है, बल्कि मोटरवे के बाज़ मकामात पर शदीद धुंध के बाइस हद निगाह सिफर हो चुकी है, जिसकी वजह से मोटरवेज को बाज़ मकामात से बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम के मुताबिक लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इसी तरह से लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक, जबकि लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 को फैज़पुर से रजाना तक आर्जी तौर पर बंद किया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम का ये कहना है कि हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र मोटरवेज़ को आर्जी तौर पर बंद किया गया है। धुंध में कमी आने के बाद मोटरवेज़ को दोबारा से खोल दिया जाएगा। मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों से भी अपील की गई है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, बिलखुसूस रात के औकात में सफ़र ना करें। अगर सफ़र करना नागुज़ीर हो और मोटरवे बंद हो
तो मुतबादिल रास्तों पर मोहतात अंदाज में गाड़ी चलाएं, ओवर स्पीडिंग से बचें और फॉग लाइट्स का इस्तेमाल ठीक यकीनी है, बनाएं। बहुत शुक्रिया इसरार आपका। मानसरा के सयाहती मकाम कागान में बर्फबारी, वादी ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने दिल फरेब नज़ारों से लुत्फानंदोज होने के लिए कागान का रुख कर लिया। देखिए जुबैर अमान की रिपोर्ट। मानसहरा की वादी कागान के सयाहती मकामात शुगरा और नारान में बर्फबारी, हर तरफ सफेदी छा गई। आसमान से रुई के गाले गिरे तो वादी कागान ने सफेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी के नज़ारों से लुत्फानंदोज होने के लिए मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने वादी कागान का रुख कर लिया। आप आए, इंजॉय करें, पाकिस्तान के टूरिज्म को सपोर्ट करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहाड़ों पे बर्फ भी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, मौसम बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। वादी कागान में मौजूद कुछ सयाह बर्फ पर स्केटिंग में मगन दिखाई देते हैं। मलेशिया से सैर व तफरीह के लिए आने वाली सयाह फैमिली का कहना है कि वादी कागान शोगरा जमीन पर जन्नत से कम नहीं है। हम लोग मलेशिया से आए हैं यहाँ पे शोगरान, ये बहुत प्यारी वादी है, आप लोग सब लोग यहाँ पे विजिट करें, बहुत खूबसूरत है। जिसका दिल चाह रहा है एंजॉय करने के लिए जरूर आए। यहाँ की वादियाँ बहुत खूबसूरत हैं, बहुत मजा आ रहा है, यहाँ पर आप लोग भी आए। वादी कागान आने वाले सयाहों का कहना है कि यहाँ के दिलकश मनाजर से उन्हें बेहतरीन तफरीह मिली। कैमरामैन लाला खुर्शीद के साथ जुबैर अवान, वादी कागान, मानसहरा। आपको बताएं कि IMF मिशन आज रात पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। बिल्कुल, IMF का मिशन पहुंच रहा है आज रात पाकिस्तान, और कल यानी आज के अगर दिन की बात की जाए तो पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे, जो कि 2 फरवरी तक जारी रहेंगे। मजीद बात करेंगे वक्कास अजीम से। जी वक्कास, आगाह कीजिए। जी, IMF का एक वफ्द पाकिस्तान पहुंचा है, जिसकी सरबराही मिशन चीफ नाथन पोटन कर रहे हैं, और पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे आज से, जो कि तकनीकी लेवल के मुज़ाकरात 2 फरवरी तक जारी रहेंगे, और 3 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी लेवल के मुज़ाकरात होंगे, जिसमें नए जो हुकूमत पाकिस्तान बजट लगाएगी उसके मुतालिक बात की जाएगी, और बिजली और गैस कीमतों के हवाले से, और ख़ास तौर पर गैरबेशरी कर्जा बिजली और गैस का ख़त्म करने के लिए हुकूमत ने जो तजावीज़ तैयार की हुई है उनके ऊपर बातचीत की जाएगी, और IMF कमीशन नए जायजे पर अमल दरामद से मुताल्लिक रिपोर्ट का भी जायजा लेगा। वज़ारत ख़ज़ाना के हुक्म का ये कहना है कि इस मुआशी जो सूरत हाल है इसमें इस्लाहात नागुज़ीर है, और हुकूमत कोशिश कर रही है कि महंगाई से आम आदमी को बचाया जाए, और जो नए टैक्स की तजावीज़ है उनमें आम आदमी के ऊपर कम से कम बोझ डाला जाए। जी वक्कास अजीम, बहुत शुक्रिया आपका। डॉलर के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रुपया मजीद कमजोर। डॉलर तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 269 रुपये 63 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 275 रुपये की नई रिकॉर्ड सतह को छू गया। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। डॉलर का मार्केट के हिसाब से छोड़ने पर रुपया मुसलसल कमजोर होने लगा। हफ्ते के पहले ही रोज तलब पर डॉलर मजीद 7 रुपए 3 पैसे महंगा हो गया। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक एक ही दिन में इंटरबैंक में डॉलर 262 रुपए 60 पैसे से बढ़कर नई बुलंद तरीन सतह 269 रुपए 63 पैसे पर बंद हुआ। 6 कारोबारी रोज में डॉलर 39 रुपए 96 पैसे महंगा हो चुका है। डॉलर तकरीबन 40 रुपए महंगा होने से पाकिस्तानी रुपए में बैरून कर्जों में 4800 अरब रुपए का बोझ बढ़ चुका है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 6 रुपए महंगा होकर पहली बार 275 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। आज का दिन भी पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कोई अच्छा नहीं रहा। हालांकि हमारा ख्याल ये था कि आज मार्केट शटल हो जाएगी और डॉलर मार्केट में आना शुरू हो जाएगा। एक तो ऐसा लगता है कि जैसे जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैं वो भी आज भी नहीं आई, और इंटरबैंक तकरीबन 7 रुपए का इजाफा हुआ है, 7 से 8 रुपए का, और हमारी ओपन मार्केट में भी इतना इजाफा हुआ है। लेकिन हमारे पास अभी भी बेचने के लिए कैश डॉलर्स नहीं है। ओपन मार्केट में यूरो 9.5 रुपए महंगा होकर 296 रुपए और बरतानी पाउंड 13 रुपए महंगा होकर पहली बार 339 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में मारुति धर्म 2.5 रुपए महंगा होकर 75 रुपए 50 पैसे और सऊदी रियाल 2.5 रुपए महंगा होकर 73 रुपए 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। अशरफ खान, सिटी 21। सोना 2 लाख रुपए फी तोला हो गया। गरीब के लिए बेटी का फर्ज अदा करना मुश्किल हो गया। सराफा मार्केटें वीरान हो गईं। पाकिस्तान ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने हुकूमत से सूरत हाल पर फौरी काबू पाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं आवाम रोटी की फिक्र से निकलेगी तो जेवर बनवाएगी। सुनारों के लिए अखराजात चलाना मुश्किल हो गया। हुकूमत को फौरी इक़दामात करना होंगे। बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए।
डॉलर की लंबी छलांग, ताजिर परेशान, महंगाई का तूफान हर शोबे को मुतासिर करने लगा। पाकिस्तान ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अरशद कहते हैं फी तोला सोना 2 लाख रुपए से भी तजावुज कर गया। कारोबार 70% तक तबाह हो चुका। बुनियादी वजह आलमी सतह पर सोने की कीमतों में इजाफे के साथ मुकामी सतह पर रुपए की कदर में कमी है। हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। आज पाकिस्तान के अंदर 271 रुपए का डॉलर हो गया, 271 रुपए का। और पाकिस्तान के अंदर जो सोने की कीमतें हैं, 2,12,000 रुपए से भी तजावुज़ कर गई हैं। मतलब क्या करेगी आवाम? आज तंदूर पे रोटी नहीं है, राशन शॉप पे राशन नहीं है, होटल के अंदर खाना नहीं है। ज्वेलर्स के मुताबिक महंगाई इस हद तक बढ़ गई है कि शहरी सोने के जेवरात की खरीदारी के बजाय आर्टिफिशियल ज्वेलरी को तरजीह देने पर मजबूर हो गए हैं। शादी ब्याह की ज्वेलरी भी जो मुतवस्सित तबका है, जो मिडिल क्लास कहते हैं, वो तो इस चीज़ से फारिग हो चुका है। हमारे गोल्ड की उससे तो ना वो अब आर्टिफिशियल में आता है, चांदी में आता है, तो सोने पे तो इस वक्त बहुत ज़्यादा इसका ज़वाल आ गया है। सदर के सराफा बाजार के ज्वेलर्स का हुकूमत से मुतालबा है कि डॉलर की कीमत पर फौरी तौर पर काबू पाया जाए ताकि कारोबार से मंदी के बादल खत्म हो सकें। डॉलर के नखरों ने काश्तकारों के लिए भी मुश्किल खड़ी कर दी। ज़रिए अद्वियात और स्प्रे की दरामद भी बंद हो गई। ज़रिए अद्वियात का सिर्फ 1 माह का स्टॉक बाकी रह गया। पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन ने खतरे की घंटी बजा दी। देखिए इस बारे में लाहौर से सईद अहमद की रिपोर्ट। मुल्क में ज़रिए अद्वियात और स्प्रे के स्टॉक में कमी हो गई है। फसलों की बुआई के लिए अद्वियात, स्प्रे और बीजों की शॉर्टेज हो गई है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन रऊफ रहमान का कहना है कि पाकिस्तान वाहिद ज़रई मुल्क है जहां अजनास की किल्लत है। ज़रिए अद्वियात के बगैर अजनास की पैदावार में कमी देखी जा रही है। 100 अरब रुपए के डॉलर्स मुहैया किए जाएं। हमारी कोई लंबी चौड़ी डिमांड डॉलर्स की नहीं है। आप लोग हैरान होंगे कि सिर्फ 100 अरब पाकिस्तानी रुपीस की हमें डॉलर चाहिए, हमें अपनी जो है वो पेस्टिसाइड इंपोर्ट करने के लिए। और आपको पता है कि अब जो है जदीद ज़राअत पेस्टिसाइड के बगैर मुमकिन नहीं है। सीनियर नायब सदर एसोसिएशन शाह सलीम का कहना है ज़रिए अद्वियात और नए बीजों के लिए 3 करोड़ डॉलर चाहिए। हुकूमत जारी नहीं कर रही। अगर बर वक्त एलसी न खोली गई तो 1 माह के बाद किसानों के पास फसलों की बुवाई के लिए पेस्टिसाइड्स नहीं होंगे, जिसकी वजह से पैदावारी लागत में बड़ी कमी का खदशा होगा। आप यहाँ पे एटॉमिक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करा दें, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दें। अगर किसान खुशहाल नहीं होगा तो ये मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता। अगर आपने डिफ़ॉल्ट की एमरजेंसी इस सिचुएशन में से बाहर निकलना है तो आपको अपना पूरा फोकस एग्रीकल्चर पे करना पड़ेगा। नुमाइंदगान का कहना है कि हुक्मरानों को अहम फैसले करने होंगे। हुकूमत ज़रिए अद्वियात, बीज और स्प्रे की इंपोर्ट के लिए एलसी खोले। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद महंगाई की नई लहर आवाम को जकड़ने के लिए है तैयार। साइकिलों की कीमत में भी इजाफा हो गया। कराची वाले सस्ती सवारी की सहूलत से महरूम हो गए। आम साइकिल की कीमत 18,500 हो गई। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। डॉलर की ऊंची उड़ान और बढ़ती हुई महंगाई ने साइकिल मार्केट को भी लपेट में ले लिया। साइकिल के कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है कि साइकिल कुव्वते खरीद से बाहर हो गई है। पेट्रोल और डॉलर की वजह से 6 से 7 हज़ार तक कीमतों में इजाफा हुआ। कि पेट्रोल के रेट बढ़ने से काफ़ी हद तक जो ना साइकिल के रेट इंक्रीज़ हुए हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेड साइकिल थी, पहले बाईसाइकिल या डॉलर के रेट की वजह से पहले फ़र्क आता था तकरीबन 1000 से 1200 रुपये का, मगर इस बार जो ऐसा हुआ है कि लोकल और इम्पोर्टेड साइकिल के अंदर कमो बेश 6-7 हज़ार रुपये का फ़र्क आया है। दुकानदार कहते हैं कि महंगाई के बाइस कारोबार ठप हो गया है, मार्केट सुनसान हो गई है। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इकदाम करे। आवाम वैसे ही परेशान है, हुक्मरानों को सोचना चाहिए। मुल्क पाकिस्तान के हालात आपके सामने, हम तो यही दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक जो है ना मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करे। महंगाई बहुत बढ़ गई है, गरीब के लिए मुश्किलात हैं सारी। 3 माह के दौरान सोहराब साइकिल 18,500, BMX 2000 और MTB साइकिल की कीमतों में 3000 तक का इजाफा हुआ है। मारूफ अदाकार एहसन खान महंगाई पर बोल पड़े। कहते हैं दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है और इसने अवामी मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। इसी बारे में रिपोर्ट करेंगे राहिल बेग। कभी आटा महंगा, कभी घी तो कभी पेट्रोल की बढ़ती कीमतें। आवाम जाएं तो जाएं कहां? शहर कायद में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे पर शोबिस शख्सियात का भी रद्द अमल सामने आ गया। टीवी फिल्म के मारूफ अदाकार एहसन खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। हमें सब्र हौसले से काम लेना होगा, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, मुस्तकबिल भी अच्छा होगा। वक्त में भी अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए, और अगर कोई ऐसा वक्त आए जहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो, मुश्किल हो, तो वो टाइम भी गुजर जाता है इंशाल्लाह।
तो जो बहुत पैनिक और बहुत परेशानी और बहुत जो केओस क्रिएट होता है, आई थिंक उसमें हम सबको थोड़ा इंतजार और सब्र करना चाहिए। एहसन खान का मजीद कहना था, कीमतों में इजाफे के साथ जहां माली मुश्किलात होती हैं, वहीं आवाम ज़हनी अजियत का भी शिकार होते हैं। रोजमर्रा अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कमी होनी चाहिए। किताबों से दूरी के खात्मे और नौजवान नस्ल को मुताले की जानिब राग़िब करने के लिए हैदराबाद के एनी बसंत हॉल में 3 रोज़ा किताब मेले का इनेकाद किया गया। नुमाइश में मुख्तलिफ मौज़ूआत की किताबें लोगों की तवज्जो का मरकज़ रहीं। इसी में रिपोर्ट करेंगे अली हमजा। हैदराबाद के तारीखी एनी बसंत हॉल में 3 रोजा किताबों की नुमाइश का इनेकाद हुआ, जिसका इफ्तिताह कमिश्नर हैदराबाद ने किया। नुमाइश में शायरी, तारीख, इस्लाम, साइंस, बच्चों के अदब समेत दीगर मुतअद्दिद मौज़ूआत पर किताबें नुमाइश की जीनत बनी। डिप्टी डायरेक्टर बसंत हॉल सोबिया अली के मुताबिक नई नस्ल में किताबों के लिए दिलचस्पी और लगाव पैदा करने के लिए ये किताब मेला सजाया गया है, जहाँ किताबें खुसूसी रियायती निर्खों पर दस्तयाब हैं। हमने जो है वो हर तरह की किताबें रखी हैं। बच्चों के लिए चिल्ड्रंस लिटरेचर है, वो किताबें रखी हैं। बड़ों के लिए लिटरेचर है, हिस्ट्री है, और उसके अलावा हमारी जितनी भी तारीख है सिंध की, पाकिस्तान की, उस तरह की बुक्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं। CSS और PCS के अच्छे बुक्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। नुमाइश में शरीक शुरका का कहना था कि इस तरह के किताब मेलों से इल्म और अदब को फरोग मिलता है और यहाँ आने वाले भी इल्म के खजाने से मुस्तफीद होते हैं। अली हमजा, 24 न्यूज़, हैदराबाद। स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए 24 न्यूज़।